بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ اصول تفسیر کے ایک اور شمارے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پیچھے ہم نے کچھ مضامین اصول تفسیر کے حوالے سے پڑھے اور آج بحمدہ تعالی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آخری سبق میں ہم نے کتب تفاسیر کو دیکھا، یعنی مفسرین نے جتنی بھی تفسیریں لکھی ہیں ان تفسیروں کو ہم کتنی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور کس کس قسم کی تفسیر ہوتی ہے، اس کا ہم نے قدر تفصیل سے اس کو پڑھا تھا۔ آج ایک اور باب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے علوم قرآنیہ کے متعلق۔ قرآن مجید نے مختلف مضامین کو بیان کیا، مختلف ٹاپکس کو بیان کیا، اور ان مضامین میں سے 5 مضامین ایسے ہیں براڈ کیٹیگریز، یعنی جو بڑی 5 کیٹیگریز ہیں جن کو قرآن نے صراحتاً بیان کیا۔ وہ 5 علوم ہیں یا 5 قسم کے مضامین ہیں۔ پہلا علم جو ان 5 علوموں میں سے ہے وہ ہے علم الاحکام۔ علم الاحکام کسے کہتے ہیں؟ جس میں عبادات آتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، ان عبادات کے احکام، اس کو قرآن مجید نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر اسی میں ایک اور چیز ہے انفرادی معاملات۔ انفرادی معاملات جیسے نکاح، طلاق، خرید و فروخت، لڑائی جھگڑے وغیرہ، تو یہ ایک شخص کی انفرادی معاملات، انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو بھی قرآن مجید نے صراحتاً بیان کیا۔ پھر ایک مسلمان کے اجتماعی معاملات، جیسے خلافت کا نظام ہے، ہاں، اور نظام عدل ہے، امن ہے، ملک کی خارجہ اور داخلہ پالیسی جس کو ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل افیئرز کہتے ہیں، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ سیاست شرعیہ، اس کے قوانین، اس کے اصول، بڑی صراحت سے قرآن مجید نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اب ان ساری چیزوں کو لے کر عبادات، معاملات، اجتماعی معاملات، انفرادی معاملات، ملکی معاملات، ان کے جو احکام ہے، حکم ہے، اور ان احکام کی نوعیت اور ترتیب، آیا کہ یہ حکم واجب ہے، فرض ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، یہ جو علم ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس عبادت کا کیا حکم ہے، اس علم کو کہتے ہیں علم الاحکام۔ احکام کا علم، حکم جاننے کا علم، کسی عبادت، کسی معاملے کے حکم کے جاننے کا علم، علم الاحکام کہلاتا ہے۔ اور یہ علم الاحکام فقہاء کرام کا موضوع ہے۔ فقہاء اسلام جو ہوتے ہیں وہ قرآن مجید سے اس طرح کے مضامین کے احکام کو ڈرائیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید ان مضامین کو بڑی صراحت سے بیان کرتا ہے۔ یہ ایک قسم کا علم ہو گیا۔ دوسرا علم جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ ہے علم الجدل۔ کیا؟ علم الجدل۔ علم الجدل کیا ہوتا ہے؟ جدل کا مطلب ہے مناظرہ، مباحثہ، مکالمہ، ہاں، یعنی یہود و نصارہ، مشرکین، منافقین کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے افکار، اس کو رد کرنا، ان کی تردید کرنا، اسے مناظرہ، مباحثہ یا مکالمہ کر کے ان لوگوں کو لاجواب کرنا، اس کو علم الجدل کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بھی صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ ہاں، کافر لوگ کچھ اعتراض کرتے تھے، قرآن مجید کی آیت اترتی تھی جس سے ان کو جواب ملتا تھا، اس کا رد کیا جاتا تھا۔ تو اس موضوع کی مناسبت سے جو آیات تعلق رکھتی ہیں قرآن مجید میں، ان کو آیات جدل کہتے ہیں، یعنی جس میں یہودیوں، کافروں، مشرکوں کو جواب ہو، ٹھیک ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، علم الاحکام، عبادات، معاملات جس میں آتے ہیں ان کے احکام، اور علم الجدل، ٹھیک ہے۔ تیسرا علم جو بڑی صراحت سے قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وہ ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد کروایا۔ کیا میں نے فلاں نعمت نہیں دی تمہیں؟ کیا فلاں نعمت نہیں دی؟ اب جگہ جگہ قرآن میں دیکھیں گے، کیا میں نے آسمان نہیں بنایا؟ کیا میں نے زمین نہیں بنایا؟ کیا آسمان سے پانی نہیں برسایا؟ پھر اس خشک زمین سے اناج نہیں اگایا تم لوگوں کے لیے؟ ہاں، رزق نہیں عطا کیا؟ ایسے بے شمار آیات ہیں جن میں قرآن مجید نے اپنی نعمت، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نعمتوں کو یاد کروایا،
और वो क्यों करता है अल्लाह पाक? ताकि अपनी बंदों को अपनी ज़ात और अपनी सिफात की याद दहानी करवाए, बंदों को मारिफत खुदा की। तो जिन आयत का ताल्लुक इन चीज़ों से है उनको कहते हैं इल्म तज़कीर बिआला इल्लाह, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आला का मतलब है नेमतें, तज़कीर यानी याद दहानी करना, इल्म तज़कीर ऐसा इल्म जिससे याद दहानी करवाई जाए, किस चीज़ की? बिआला इल्लाह, अल्लाह की नेमतों की। शाबाश। तो ये तीन चीज़ें हो गई, इल्मुल अहकाम, इल्मुल जदल, इल्मुत तज़कीर बिआला इल्लाह। चौथा इल्म है जो कुरान मजीद ने सराहत से बयान किया, वो है इल्मुत तज़कीर बिअय्यामिल्लाह। एक है इल्मुत तज़कीर बिआला इल्लाह, यह है इल्मुत तज़कीर बिअय्यामिल्लाह। अय्यामुल्लाह यानी अल्लाह ताला के दिन। अल्लाह ताला के दिन किन्हें कहते हैं? ऐसे वाक़यात जिनमें अहले ईमान के लिए गैर मामूली वाक़यात और मोअजिज़ात रोनमे हुए, या काफिरों पर हादसे और अल्लाह की तरफ से कहर नाजिल हुआ, अज़ाब इलाही नाजिल हुआ। जिन आयात में ये मज़ामीन हो, ये मज़मून बयान किया गया हो, उन आयात को, उस इल्म के जानने को इल्म तज़कीर बिअय्यामिल्लाह कहते हैं। ठीक है, ये भी बड़ी सराहत से कुरान मजीद ने जिक्र किया। और पांचवा इल्म इस हवाले से है इल्म तज़कीर बिल मौत व मा बअदा, मौत की याद दहानी करवाना और मौत के बाद जितनी मंजिलें हैं, हश्र व नशर है, हिसाब व किताब है, जन्नत जहन्नम है, जिन आयात में ये मजमून है उसको कहते हैं इल्म तज़कीर बिल मौत व मा बअदा। तो ये सारे मज़ामीन कुरान मजीद ने बड़ी सराहत से इनका जिक्र किया और इसका एक ख़ास असलूब कुरान मजीद ने रखा है। अब इसमें से हम फिलहाल इल्मुल जदल को ले लेते हैं, जिसमें कुरान मजीद ने अफकार बातिला की तरदीद की और हक का दिफा किया। ठीक है, कुरान मजीद ने अमूमी तौर पर जिन अकायद का रद्द किया, जिन अफकार का रद्द किया, वो चार हैं: यहूद, नसारा, मुनाफिकीन और मुशरिकीन। इनका रद्द कुरान मजीद में बड़ी सराहत से कैटेगोरिकल वर्ड्स में मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले मुशरिकीन। मुशरिकीन कौन थे? मुशरिक किसे कहते हैं? यानी उस वक्त के, उस दौर की बात हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में अव्वलीन मुखातब जो थे, यानी जिनसे अल्लाह ताला ने खिताब किया, वो मुशरिकीन अरब थे, जो दर हकीकत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद थी। हाँ, वो अपने आप को फख्र से हुनफा कहते थे। हुनफा यानी दीन हक पर चलने वाले, क्योंकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलने के मुद्दई थे, दावा करते थे कि हम हजरत इब्राहिम के दीन पर हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ऐसी चीजें खुद से घड़ रखी थी जो दीन इब्राहिम के सरासर खिलाफ थी। अब वो लोग क्या करते थे जिस वजह से वो अपने आप को दीन इब्राहिमी के पैरोकार समझते थे? वो बैतुल्लाह का हज करते थे। वो मुसलमानों में भी फिर हुआ, हाँ, उसका हुक्म। किबला रुख होकर नमाज भी पढ़ते थे, जनाबत के बाद गुस्ल भी करते थे। ये दीन इब्राहिमी की कुछ चीजें हैं जो वो लोग मुशरिकीन अरब करते थे। खुतना भी करते थे, जो सुन्नत नबवी भी है। खसाइल फितरत इख्तियार करना, खसाइल फितरत में है, यानी नेचुरली जिन चीज़ों से एक इंसान की सफाई सुथराई होती है, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, नाखून काटना, मोए ज़ेरे नाफ काटना, दाढ़ी संवारना, सफाई सुथराई, ये सारी चीज़ें वो लोग भी करते थे। इसके अलावा जो मोहतरम महीने हैं, मुअज़्ज़म महीने हैं, रजब है, ज़िलक़ादा है, मुहर्रमुल हराम है, ज़िलहज्जा है, इन महीनों में जंग व जिदाल को रोकते थे। ये दीन इब्राहिमी की कुछ चीज़ें हैं जो मुशरिकीन के यहाँ भी पाई जाती थी। मस्जिद की इज्जत करते थे और नसबी और रज़ाई रिश्ते, यानी दूध के रिश्ते और जो खूनी रिश्ते थे, उनकी वो हुर्मत को जानते थे। जानवरों के हल्क पर छुरी चलाकर उनको ज़बह करते थे। यानी हमारे यहाँ जो मशहूर है कि गैर मुस्लिम झटका करके जानवर को ज़बह करते हैं, वो अच्छी तरह ज़बह करते थे जिस तरह मुसलमानों के यहाँ है। ऊँट को नहर करके ज़बह करते थे, यानी उसके गले में वो छुरी देते हैं ना, नहर करते हैं, उसको कहते हैं नहर करना। वो नेज़ा ऊँट के गले में इस तरह मारना। इस तरह और भी कुछ चीज़ें थी जो मुशरिकीन अरब के यहाँ थी, जिस वजह से वो अपने आप को दीन इब्राहिमी के पैरोकार समझते थे। ये उनमें कुछ चीज़ें पाई जाती थी। इसके अलावा इबादत में वुजू भी करते थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, यतीम और मिस्कीनों पर सदका करते थे, मजलूमों की मदद करते थे, सिला रहमी करते थे। और जो गुनाह कबीरा मसलन नाहक है, चोरी है, बदकारी है, सूद है, डकैती है, इन चीज़ों को हराम भी जानते थे। ये सब मिल्लत इब्राहिमिया का हिस्सा थी। ठीक है, लेकिन उनकी जो गुमराहियां थी, पहली गुमराही उनकी ये थी कि उन्होंने शिरक किया। मुशरिक अरब के मुशरिकीन जो असलन मुवहिद थे, असलन
मोहित यानी तौहीद पर कारबंद थे। लेकिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से, उनकी तशरीफ आवरी से 300 साल पहले एक शख्स था उनमें, आमर बिन लुहाय या आमर बिन लुहा। उस शख्स ने सबसे पहले बुत बनाया। आइडल वर्शिपिंग जो अरबों में जारी हुई इस शख्स की वजह से हुई। इसने सबसे पहले पुतला बनाया और बुत परस्ती को रिवाज मिला, वरना उस दौर तक ये सब मुवाहिद थे। तो पहली गुमराही इनकी शिर्क थी। अल्लाह ताला की जात में तो अमूमन इस तरह अक्सरियत शिर्क नहीं करती थी, यानी इनका ये अकीदा था कि हकीकी खालिक कायनात अल्लाह ताला की जात है, वही इस आलम कौनो मकान का मुतसर्रिफुल उमूर है, चलाने वाला है। अलबत्ता वो अल्लाह ताला की सिफात में ज्यादातर मुशरिक हो गए। मसलन उन्होंने फिरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार दिया। उन्होंने ये कहा कि फिरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और रिज्क एक बुत के हवाले कर दिया, पानी बरसाना एक बुत के हवाले कर दिया, फलां बुत औलाद देगा, फलां बुत ये करेगा। इस तरह उन्होंने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग बुत रख लिए थे और वो इस तरह शिरक में मुब्तला हो गए। दूसरी गुमराही उनकी ये थी कि उन्होंने तशबीह की। यह हमने जो फर्ज उलूम कोर्स पढ़ा था उसके शुरुआती दुरूस में हमने कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात हर लिहाज से मखलूक के मुखालिफ है, यानी मखलूक खालिक का बिल्कुल अपोजिट है। कोई सिफत ऐसी नहीं है जो मखलूक में भी हो अल्लाह में भी हो, ठीक है, ब्याई नहीं। तो उन्होंने बाज चीजों में मखलूक को खालिक के बराबर कर दिया, मखलूक को खालिक के मुशाबे कर दिया। हाँ, मसलन उन्होंने जब ये कहा कि फिरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, बेटियां किसकी होती है? इंसानों की, बनी आदम की होती है। तो इस सिफत में गोया के औलाद होने की सिफत में उन्होंने बंदों को, फिरिश्ते भी बंदे हैं अल्लाह के, मखलूक है, उन्होंने मखलूक को खालिक के बराबर कर दिया, तशबीह कर दी। ये उनकी दूसरी गुमराही थी। इस तरह फिर उनके अकायद थे। तीसरी गुमराही जो मुशरिकीन के यहाँ थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तहरीफ की, गड़बड़ कर दी अकीदे तौहीद में। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अकीदे तौहीद राजा था, लेकिन ये जो शख्स पैदा हुआ जो मैंने अर्ज किया कि उसने सबसे पहले शर्किया मरासिम और बुतों को गढ़ने और उनकी इबादत में पहल की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत से 300 साल कबल का ये ज़माना था, और इस तरह उसने दूसरे रसूमात और बिदात को फ़रोग दिया, जिससे वो अपने दीन की तालीमात से हट गए। तहरीफ फिद दीन उन्होंने की, एक और गुमराही थी उनकी, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके जब वो इस शिर्क की बीमारी में मुब्तला हो गए, उन्होंने माद का इनकार किया, यानी अकीदे आखिरत, मरने के बाद दोबारा उठाया जाना, उन्होंने इसका इनकार कर दिया। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस दौर में अब बहुत फासला हो गया था, बीच में एक बड़ा अरसा ऐसा था जिसमें कोई नबी ने अब नहीं था। अब शरीयत के अहकामात उनके दिलों से, उनकी तालीमात से वो दूर दूर चले जा रहे थे रोज बरोज। इस वजह से उन्होंने धीरे धीरे करके बुनियादी अकायद जो थे दीन इब्राहिमी के, उन्होंने उनका इनकार करना शुरू कर दिया, जिसमें से सबसे बड़ा अकीदा मरने के बाद दोबारा उठाया जाना है, इसका भी उन्होंने इनकार कर दिया। फिर एक और बड़ी गुमराही, सबसे बड़ी गुमराही उनकी ये थी, उन्होंने रिसालत मोहम्मदी को नहीं माना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह ने नबूवत किया, उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया। उसकी एक बड़ी वजह एक नफ्सियाती मसला भी था, है? उनके दिलों में, यानी वो उनको नबी की हैसियत से नहीं देखते थे। वो कहते थे कि इनकी तो बशरी सिफात है, हमारे साथ खाते हैं, पीते हैं, शादी ब्याह करते हैं और मामला खरीदो फरोख्त करते हैं, तिजारत करते हैं, तो ऐसा तो नबी नहीं होना चाहिए, वो तो फिरिश्ता सिफत होना चाहिए, है? तो ये उनकी एक और गुमराही थी, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने इन मुशरिकीन का रद्द कुरान मजीद में किया। अल्लाह ताला ने हुज्जतें कायम की, आयतों में उनके अकायद बातिला और अफकार बातिला और नजरियात बातिला का रद्द किया, ठीक है। और फिर उनका जो अकीदे तजसीम और तशबीह था कि वो मखलूक को खालिक के बराबर जानते थे, उसका रद्द किया। इसके बाद यानी इसका अलग अलग उसलूब है। इनके जो अकायद थे ना कि हश्र नशर को उन्होंने इनकार किया, उसका इनकार रिसालत किया। ये आगे फिर जब हम सूरतों की वो वजाहत करेंगे ना, तफसीर में आएंगे बराह रास्त, तो आखिरी पारा जो हमने लेना है सूरह अम्मा से, तो उसमें फिर ये चीज़ें भी धीरे धीरे आ गई कि अल्लाह ताला ने मुशरिकीन, काफिरों, यहूदियों को और नसारा का रद्द कैसे कैसे किया, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी आती है वो है यहूद का जिक्र। यहूदी जो थे वो तौरात पर ईमान रखने के बावजूद गुमराहियों में मुब्तला थे। यहूदी खुद को पैरोकार समझते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, ठीक है।
उनकी जो गुमराहियां थी, उन्होंने तौरात की लफ्जी और मानवी तहरीफ की, यानी उनके अल्फाज भी उन्होंने चेंज किए। और एक और बड़ी गुमराही उनकी, उन्होंने तौरात को अवाम से छुपाया, जिस तरह ईसाइयों ने किया रिसेंट टाइम्स में भी। तिमोथेयुस वनान वो कहते थे कि जो बाइबल है ये पढ़ने का सिर्फ जो पोप्स हैं, उनके उनके जो फादर्स वगैरह हैं, जो उनके बड़े लीडर्स हैं, उनको सिर्फ बाइबल पढ़ने का हक है, अवाम को बाइबल पढ़ने का हक नहीं है। ये तरीका उन्होंने किन से लिया? यहूदियों से लिया। यहूदी भी ये समझते थे कि उनकी जो तौरात है, मुकद्दस किताब उनकी, वो पढ़ने का हक सिर्फ उनके उलमा को है। हाँ, और फिर उनके जो अपने दावे थे, उन्होंने उन्हीं को आयत बनाकर पेश किया, तौरात का हिस्सा बनाकर पेश किया। इस तरह और भी चीजें उन्होंने की। और एक और आखिरी चीज, जिस तरह मुशरिकीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत के मुनकिर हुए, इस तरह यहूद भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुनकिर हुए, फिर आपके हक में बेअदबी की, तानो तशनी की। हालांकि तौरात में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफात, उनके खसाइल पहले से मौजूद थी। उनके उलमा जो थे, चोटी के उलमा, वो पहले से जानते थे कि तौरात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम औसाफ आमिर बयान करना। उसके बावजूद भी उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, मसलन एक मशहूर हदीस है, बुखारी शरीफ में भी है, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो एक यहूदी राहिब थे, यहूदी आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो उन्होंने उसमें तौरात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निशानियां पड़ी थी कि उनके अंदर क्या क्या औसाफ होंगे। बुखारी शरीफ में बड़ी तफसील के साथ ये हदीस बयान की गई है। बहरहाल अर्ज करने का मतलब यह है कि उनके यहाँ इल्म था। कुरान मजीद ने भी इसको जिक्र किया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन लोगों को हमने किताब दी। अब दो ग्रोहों को किताब दी, यहूद को और नसारा को। अभी हम यहूद के ग्रुप पर है। आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु, वो इस नबी को पहचानते हैं, उनको पहले से इंट्रोडक्शन है इस नबी का, नबी आखिर ज़मान का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमा यारिफून अबनाअहुम, जिस तरह उनको अपने बेटों की पहचान है। इतना क्लोजली वो जानते थे कि हाँ यही पैगंबर है। क्यों? उनकी अपनी मुकद्दस किताबों में जिक्र था, पहले से जिक्र मौजूद था। फिर इन्होंने और गड़बड़े की, ये यहूद का जिक्र। इसी तरह फिर अल्लाह पाक ने अगले मरहले में नसारा का जिक्र किया। नसारा खुद को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार समझते थे, मानने वाले समझते थे, और उनका बुनियादी अकीदा अकीदे तस्लीस था। अकीदे तस्लीस यानी वो खुदा और फिर खुदा का बेटा और फिर रूहुल अमीन, रूहुल कुद्स, इन तीन को मानते थे। वो कहते थे कि बेटा खुदा है, खुदा बेटा है, और रूहुल कुद्स इनके दरमियान एक उन्सुर है, और इसको वो अकानीम कहते थे, तीन खुदाओं का मजमुआ। इस नजरिए को उखनों सलासा, खुदाए सालूस, तौहीद फिर तस्लीस, सालूस मुकद्दस, या आज के मॉडर्न दौर में उसको अंग्रेजी में कहते हैं बिलीफ ऑफ ट्रिनिटी, तीन चीजें अकीद। वो ट्रिनिटी में तीन चीजों को मानते हैं, फादर, सन और होली स्पिरिट। कहते हैं सन भी फादर है, फादर भी सन है, बेटा खुदा है, खुदा भी बेटा है, फिर होली स्पिरिट इनके साथ है, तीनों को मिलाकर एक है। कहते हैं ना बेटा फादर से जुदा है, ना फादर बेटे से जुदा है। हालांकि इसमें गड़बड़ है, ये अकल तस्लीम नहीं करती, इसके बहुत सारे इन्हें प्रॉब्लम्स हैं। इनको इंशाल्लाह कभी देखेंगे हम कि इसका रद्द कैसे किया जाए अकीदे तस्लीस का। बहरहाल ये उन्होंने वो प्रॉब्लम खड़ी कर दी अकीदे तस्लीस की। ठीक है, फिर यूनानी फलासफा से वो लोग मुतासिर हुए थे, नसारा जो है। ठीक है, असल में उनको नसारा क्यों कहते हैं? नसारा क्यों कहते हैं? नसारा अंसार से बना है, अंसार यानी मददगार। हाँ, ईसा कुरान मजीद में इसका जिक्र है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाला मन अंसारी इलल्लाह, क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है मेरा मददगार अल्लाह की जानिब से? तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं, यानी अल्लाह के दीन के मददगार हैं। तो असल में उनका नाम जो है, असल नाम वो है नसारा, लेकिन वो खुद को क्या नाम है इसका, मसीही नाम से जानने लगे, यानी मसीह ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब करके वो खुद को मसीही कहने लगे, लेकिन असल नाम उनका है नसारा। उनके भी बुनियादी अकायद वही थे कि मबदे आलम जो कायनात का मौजूद है वो असल है और वाजिबुल वजूद है। लेकिन फिर उनके कुछ अकायद फिलोसोफर से मिलने लगे। यूनानी फलसफा जो था, यूनान के फलासिफा जो थे बड़े बड़े, उनसे मिलता जुलता था। हाँ? और वहां के नजरिए से उन्होंने खुद बाप का नजरिया गढ़ा, फादर का नजरिया गढ़ा, और फिर
अक्ल अव्वल जो यूनानी फलासफे का यहाँ एक कॉन्सेप्ट है अक्ल अव्वल का, वहां से बेटे का नजरिया गढ़ा। बेटा बाप का कलाम है, कलिमतुल्लाह है, जो ईसा अलैहिस्सलाम को है, वो बाप से निकला है। लिहाजा ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदाई कलाम का मजहर और इस हैसियत में दूसरा खुदा बना दिया। क्योंकि वो कलिमतुल्लाह है इसलिए वो भी खुदा हो गया। ठीक है, और जो मखलूक, पूरी मखलूक की पैदाइश के दरमियान वास्ता है, यही हैसियत फलासिफा के यहाँ अक्ल अव्वल कहलाती है। समझ आ रही है? इसी तरह रूहुल कुद्स, होली स्पिरिट जो उनके यहाँ अकीदा है, वो समझते हैं सुशाक वो एक मख्फी ताकत है, हिडन पावर शुशाक, जो हर बाप बेटे के तवसुत से सिफत हयात और सिफत मोहब्बत है, यानी इस लाइफ जो लाइफ और लव है, यह है होली स्पिरिट। अजीब और गरीब कॉन्सेप्ट है जिनका वो यानी खुद भी उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समझ आ रही है? तो इस उनके इन अकायद का भी अल्लाह पाक ने मुफस्सल रद्द किया, कुरान मजीद में सराहतन इसका रद्द मौजूद है। ठीक है, तो ये हो गए एक तो मुशरिकीन, फिर यहूद और फिर नसारा। अब इनकी जो किताबों में कुरान मजीद में, इनकी किताबों में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की बशारत थी। हाँ, मसलन नसारा की गुमराही का एक बड़ा सबब है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारतों के मुतालिक जो बशारतें थी लफ्जी व मानवी तहरीफ की। एक मारूफ बशारत फारिकलीत की है, यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की बशारत में एक लफ्ज उनके लिए आया है कि फारिकलीत। फारिकलीत का माना होता है अहमद। क्या? अहमद। उन्होंने कहा कि इसका नहीं, इसका मतलब है मददगार। समझ आ रही है? यानी ताकि ये माना हुजूर के माना में सादिक ना आए, इससे फिर वो डिराइव ना कर सके कि इससे मुराद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हालांकि उनकी किताबों में भी लिखा हुआ था कि नबी करीम आएंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कुरान मजीद में आते एक आयत में आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को बशारत दी कि मेरे बाद आएंगे याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद हज़रत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। उनकी किताब में जो मौजूदा यूहन्ना की वो जो इंजील है उसमें फारिकलीत का लफ्ज़ था। फारिकलीत का जब हम ट्रांसलेशन करते थे तो अहमद आता था, उन्होंने उसको मददगार बना दिया। तो ये उन्होंने क्या नाम है इसका उसका तर्जमे में उसकी गड़बड़ कर दी। समझ आ रही है? इस पर एक लंबी तहकीक है लफ्ज़ फारिकलीत पर। अब चौथा ग्रुप जिसकी कुरान मजीद ने तरदीद की वो है मुनाफिकीन। मुनाफिकीन का लफ्ज़ जो है वो नफक से निकला है। नफक चूहे की बिल को कहते हैं, जहां पर चूहा छुपता है अपना इसको घर में, उसको नफक कहते हैं। और आज भी जो टनल्स बनाते हैं ना अंडरग्राउंड, सड़कों के नीचे टनल्स बनाते हैं या पहाड़ों में टनल्स बनाते हैं, उसको अरबी में नफक कहते हैं, बिल। ठीक है, चूंकि वो अपनी बिल के दो मुंह रखता है। बिल के दो हिस्से होते हैं ना, जहां से आदमी घुसता है और जहां से निकलता है, ताकि एक बंद हो जाए तो दूसरे से निकल जाए। मुनाफिक के दो चेहरे होते हैं, मुसलमानों के साथ मुसलमानों की बात और काफिरों के साथ काफिरों की बात। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, कुरान मजीद में है ना शुरुआती आयत में, जब वो मुसलमानों से मिलते थे कहते थे आमन्ना, हम ईमान लाए हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जब अपने शैतानों के साथ मिलते थे क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो तुम्हारे ही साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक करते हैं इनके साथ। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, फिर अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक उनसे इस्तेहज़ा फरमाता है। ठीक है, तो मुनाफिकीन का भी बड़ी यानी वजाहत के साथ सराहतन कुरान मजीद ने उनका रद्द किया। फिर इस निफाक की किस्में हैं निफाक एतिकादी, कि दिल में कुफ्र और इनकार शरीयत हो मगर ज़बान से कलमे शहादत की गवाही देता हो। सूरह मुनाफिकीन है कुरान मजीद में, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जब आपके पास मुनाफिकीन आते हैं वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन इन्नल मुनाफिकीना, ये जो मुनाफिकीन है ये झूठे हैं, उनकी गवाही देना ये झूठ पर मबनी है, दिल से वो आपको नबी नहीं तस्लीम करते। इसीलिए मुनाफिकीन के बारे में कुरान मजीद ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फली मिनन नार, सूरह निसा में, कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। क्योंकि एक तो काफिर है, वो कैटेगोरिकल तौर पर अल्लाह का इनकार करता है, हुजूर का इनकार करता है, उससे मुश्किल नहीं है, उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं है इस्लाम को। लेकिन मुनाफिकीन इस्लाम का भेष लगाकर कलमे का इस्तेमाल करके अंदर से कुफ्र और निफाक फैलाता है, ये ज्यादा खतरनाक है। तो ये निफाक एतिकादी हुआ कि एतिकाद में निफाक हो। दूसरा होता है निफाक अमली। निफाक
عملی یعنی صدق دل سے دین برحق پر ایمان رکھتا ہو اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا ہو، مگر عملی زندگی میں ہوائے نفس مغلوب ہو، ہوائے نفس مغلوب ہو۔ جو ایسا کام کرتا ہے جیسے مثلا وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، گالیاں دینا، دھوکہ دینا، جو ایسا منافق عملی ہے وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ گناہگار مومن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی ایسا نفاق مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی، اگر نفاق اعتقادی ہو معاذ اللہ تو عند اللہ تو وہ کافر ہے، ہمارے نزدیک تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے، زبان سے کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، کوئی شخص، ہمیں کیا پتہ اس کے دل میں کیا ہے، تو عند الناس وہ مسلمان ہی کہلائے گا، کیا مسلمان ہی کہلائے گا، لیکن عند اللہ وہ کافر ہے، اللہ تو جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفاق عملی، تو یہ مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے، جو مثالیں ہم نے دی، وعدہ خلافی، جھوٹ، دغا بازی کرنا، مسلمان کو دھوکہ دینا، تو ایسا منافق یہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمانوں سے خطائیں ہو جاتی ہے لیکن گناہگار ضرور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اسباب وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید نے پھر اس کا بھی تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا، چونکہ یہ بڑے چار اس وقت گروہ تھے جو مسلمانوں کے آڑے تھے اور توحید کے پیغام کے آڑے تھے، ایک مشرکین، اور پھر یہود، اور پھر نصارہ، اور پھر منافقین، ان چاروں طبقوں کو قرآن مجید نے ایڈریس کیا۔ انشاءاللہ باقی آگے اگلے والے دروس میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔